Assalamu alaikum everyone. Today we start with question number 12 and the question is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. Let's first draw a circle. Given a circle, say center O, ABC triangle is circumscribing this circle. That means the edges of the triangle ABC are touching the circle at 3 different points like this. The figure is given. So this is a triangle ABC. We are given a triangle ABC circumscribing a circle with center O of radius 4 cm. OD is the radius of the circle and we are given CD as 6 cm. This is A, this is B here. CD is given as 6 cm. Also BD is given as 8 cm. We are given a triangle circumscribing a circle with center O and radius 4 cm and some dimensions are given as well. CD is 6 cm and BD is equal to 8 cm. What we need to find is, we need to find the side AB and AC. ट्रायंगल जो है इसका एक साइड तो गिवन है, हमने फाइंड करना है AC और AB को. ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन a triangle ABC circumscribing a circle of radius 4 cm. Also given CD is equal to 6 cm. BD is equal to 8 cm. These things are given. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है AC एंड द साइड AC एंड AB. इनका मेजर हमें फाइंड करना है. ओके, सो कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करते हैं. We join O with C with the dotted line, O with B as well, right, as well as A with O. Also we join O with the radius with the point of contact of the sides AC and AB. AC और AB जहां पे सर्कल को टच कर रहे हैं वहां से हम रेडियस को ज्वाइन करते हैं. So as we have considered O, this is the point D, say this is E here and it's this one is there. Hope you understand. So we just do some construction here. OA ज्वाइन किया, OC and OB को हमने ज्वाइन किया, साथ में OE and OF को हमने ज्वाइन किया. As you all know that the radius is always perpendicular to the tangent through point of contact. तो ये हमेशा ही 90 डिग्री होंगे. ये एंगल्स 90 डिग्री होंगे. ज्वाइन OA, OB, OC, OE and OF respectively. इन साइड्स को हमने ज्वाइन किया है. आफ्टर दैट, as you all know, OD is 4 cm means OE is the radius of the same circle, so OE and OF भी 4 cm ही होंगे. Right? We need to find AC and AB. लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे we have a circle and for this circle this C and B
ए बी एंड सी एक्टिंग एज द एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये तीनों एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो इनसे जो भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस सीई विल बी इक्वल टू सी डी, और अगर सी डी सीई के बराबर है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। बी डी इज इक्वल टू बी एफ, मीन्स दैट बी डी और बी एफ इक्वल है, तो दिस वन इज 8 सेंटीमीटर। ए ई इज इक्वल टू ए एफ, तो ए ई ए एफ को हम x मान के चलते हैं, एज बोथ पार्ट्स आर इक्वल सो वी मार्क ए ई एज x एंड ए एफ एज x एज वेल। तो इस तरह हमें मेजर्स ऑफ द साइड्स हमें पता चला। दैट मीन्स द sides are now, one side is x plus 6, so we write here in solution we have sides AB is equal to x plus 8 and the unit is here centimeter. BC is equal to 6 plus 8, that is equal to 14, and the third side AC is equal to x plus 6 centimeter. These three sides are given here. Now you know, in order to, as we are going to use the area of the triangle to find the result. Okay, यहाँ पे हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे हमें जो गिवन है वो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, और जब भी साइड्स गिवन होंगे तो हम जो यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज द हीरोन्स फार्मूला। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल, we have area of triangle ABC as, we have area of triangle ABC will be equal to under root s into s minus a, s minus b and s minus c. What is s actually? This is the half of the perimeter. Okay, so the value of s is actually, now s will be equal to, that is the sum of the three sides plus divide by 2, that is x plus 8 plus 6 plus 8, that is equal to 14 plus x plus 6 divide by 2। ये यही वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ध्यान देना है these are the three given sides, क्योंकि यहाँ पे अननोन्स भी है x, that's why हम यहाँ पे पूरा साइड, पहला है x plus 8, second is 14 and third is x plus 6, and you know the perimeter of the triangle is actually sum of the all sides, and this is the s is the half of the perimeter, means divide by 2, so we get the value as x plus x become 2x, 8 plus 14, 8 plus 6 is 14, 14 plus 14 is 28, divide by 2, that will be equal to 2, will we take the 2 common here, we are left with x plus 14 upon 2, 2 cancels with 2, implies s is equal to x plus 14. Right, clear up to this? Pause the video to note it down. Now okay, now s is given, therefore area of triangle ABC will be equal to under root of s into s minus a, under root of s is here x plus 14 into x plus 14, s into s minus a, s is x plus 14 minus a is here, a is the side, first side, as I am considering AB as the side 1, if AB is the side 1 we mark this a as well, इसको हम b मानते हैं और इसको c मानते हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो ए बी सी है ये साइड्स होते हैं, और a जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट है, दैट इज ऑफ मेजर x plus 8, so here we can write it as x plus 8. Now it is x plus 14, s into s minus a is x plus 8, that will become x minus 8, as on multiplying with minus we get the negative sign here, माइनस से जब माइनस इस x plus 8 को मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस x minus 8 आ जाएगा। सेकंड x plus 14 minus
14. S into S minus A, S minus B. S is x plus 14 and minus 14. Third is x plus 14 minus x plus 6 means x minus 6. On solving the upper result, we get x plus 14 x और x यहां से कैंसिल होगा, वन इज पॉजिटिव अनदर नेगेटिव. 14 माइनस 8 विल बिकम 6. यहां पे 14 कैंसिल विद 14, वी आर लेफ्ट विद x ओनली. और यहां पे भी x से कैंसिल होगा, वी आर लेफ्ट विद 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8. That will be equal to 6 into 8 will become 48. So x plus 14 into 48x. That is equal to, so area of triangle ABC will be equal to x into 48. X will become 48x square and 14 into 48 plus 14 into 48x. So this is actually the area of the triangle. ये जो हमारे पास है ये area of the triangle होगा और ये area of the triangle using the Heron's formula होगा. क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह का रिजल्ट फाइंड करना हो, x का वैल्यू फाइंड करना हो, तो इस केस में हम क्या करें, हम डिफरेंट तरीके से एरियाज को, एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट वैल्यूज फॉर्मूलाज फॉर द एरिया टू फाइंड द एरिया. यहाँ पे एक एरिया जो है वो हीरॉन्स फॉर्मूला को यूज करके हमने निकाला. दूसरा एरिया वी आर गिवन द अल्टीट्यूड एज वेल, सो वी कैन यूज हाफ अ बेस इनटू अल्टीट्यूड टू फाइंड द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल. तो दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया होंगे तो उनको कंपेयर करके हमें वेरिएबल अननोन का वैल्यू आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. नाउ यहां पे आप पूरा ध्यान दीजिएगा. ये जो ट्रायंगल है ये डिफरेंट ट्रायंगल से बना है. ए ओ बी ट्रायंगल को अगर देखा जाए, सॉरी दिस ए ओ सी ट्रायंगल जो हमारे पास है, ये वाला ट्रायंगल, इसका ये अल्टीट्यूड होगा बिकॉज द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मींस ये जो ट्रायंगल होगा इसका एक अल्टीट्यूड गिवन है और इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 1/2 ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड गिवन एंड द बेस इज दिस वन. सो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं एंड सिमिलरली COB एरिया निकाल सकते हैं एंड AOB एरिया निकाल सकते हैं और तीनों का एरिया मिला के हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल सकता है. सो वी फाइंड द एरिया ऑफ द होल ट्रायंगल. Now area of triangle ABC, that is equal to area of triangle AOB plus area of triangle AOC plus area of triangle COB और BOC. ये एरिया होगा तो हम एक एक करके इनका एरिया निकालेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, that is equal to 1/2 of base. I am talking about the triangle AOB, means base is here AC and altitude is OE. So it means half of base AC is made of AE plus CE, that will become x plus 6 multiple with OE is equal to 4. 2 cancels, 2 1 are 2 2s 4. We are left with 2x plus 12. This is the area of the one triangle. Area of triangle AOC, that is equal to 1/2 of, similarly base into altitude. For the triangle AOC, the base is here AB and that is equal to x plus 8 and altitude is OF again. And what is OF actually? It is 4 centimeter radius. This is actually the radius of the same circle. 2 1 are 2 2s 4.
So it will become 2x plus 16. Third area is area of triangle COB or BOC, we can say, that will be equal to half of base is equal to BC, that is equal to 8 plus 6, that is 14 into the altitude is again 4. 2 7 are 14, 7 4 are 28. These are the areas. So ये इनका डायमेंशन सेंटीमीटर है तो इनका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा. Right? Now, as we have area of triangle ABC as the sum of the three, so we can finally say the area of triangle ABC will be equal to summation of the three. And इससे हमें जो पूरा एरिया मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस वाले एरिया से to get the required result. Hope you understand up to this. Now moving to next step. Now area of triangle ABC will be equal to 2x plus 12, that is the summation of the three. 2x plus 12 plus 2x plus 16 plus 28. We get 2x plus 2x is 4x plus 12 plus 28 will become 40. 40 plus 10 is 50, that is 56, I think. So 4x plus 56 is the area of the triangle ABC. As we have the area of the triangle here and area of the same triangle is this one, so we can compare the both areas. Therefore, under root of 48 x square plus 14 into 48, हम इसे कैलकुलेट करेंगे अभी. x will be equal to 4x plus 56. I think it is clear up to this. क्योंकि ये भी एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल है, इन्हीं को हमने आपस में कंपेयर किया है टू गेट द रिजल्ट लाइक दिस. ओके, नाउ वी सॉल्व द गिवन रिजल्ट. नाउ वी कैलकुलेट इट. तो इसे हम रब कर सकते हैं यहाँ पे. नाउ रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना जरूरी है, तो स्क्वायरिंग ऑन both sides. So on squaring this, root will cancel. We are left with 48x square plus 14 into 48. 14 into 48 will become 672x, I think. $32 818. Yeah, it is 672. So यहाँ पे आ जाएगा 672x is equal to here. यहाँ पे अब आ जाएगा जब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं. If I am squaring here, it means स्क्वायरिंग यहाँ से रूट हटा तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा. So that it will become a plus b whole square, that is equal to a square, that is 4x whole square plus 2ab, 2 into 4x into 56 plus b square plus 56 whole square. Hope you understand. Now it will become 48x square plus 672x is equal to 4 square will become 16x square plus 4 2 is 8. 8 into 56 will become 448x and 56 will be equal to 3136. I have calculated this. So it is 3136 here. Okay. उसके बाद implies 48x square minus 60, 48x square minus 16x square plus 672x minus 448x. On shifting the terms to left hand side, to left hand side, और यहाँ से भी ये टर्म भी लेफ्ट साइड लाएंगे तो minus 3136 ये जीरो आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से हम 48 minus 16 will become 32x square. 672 minus 448 will become positive 224 minus 3136 is equal to 0. Implies
यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इससे कुछ कॉमन लेके हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. सो 32 को कॉमन लेके यहाँ पे x स्क्वायर 32 into 7 will become 224, but x is with this 24 as well. Okay, so 7x minus 32 into 98 is 3136 is equal to 0. On multiplying 32 with 98 we get 3136, 32 with 7 we get 224x, and 32 with x square will become 32x. Further on taking the 32 to 0, on dividing 32 to 0 it will become 0. We are left with x square plus 7x minus 98 is equal to 0. Now we solve the quadratic equation to get the value of x. Implies इसके फैक्टर फाइंड करते हैं हम. It will become x square plus 7x को ब्रेक करना in two parts such that the product will become minus 98x square. That will become 14x minus 7x minus 98 is equal to 0. अगर यहाँ पे हम 14 में से 7x 14x में से माइनस करेंगे 7x तो हमें 7x मिलेगा. On multiplying 14 with the 7 we get 98 and it is negative 1. Positive into negative will become negative, तो ये factors होंगे. On taking x common we get x plus 14 here, and x plus 14 means साइन चेंज हो रहा है तो नेगेटिव साइन भी बाहर आया है और 7 भी बाहर आया है इज इक्वल टू 0. implies x minus 7 x plus 14 is equal to 0. Either x is equal to 7 or x is equal to minus 14. On comparing x minus 7 to 0 we get x as minus x as 7 and x plus 14 as minus 14. तो यहाँ पे x is equal to 7 is the positive value and here x is equal to minus 14 is the negative. Length can't be negative, so since x or length can't be negative, अगर लेंथ नेगेटिव नहीं होता है तो हम कह सकते हैं x का प्रॉपर वैल्यू क्या है 7 होगा. तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो 7 है. सो sides AC will be equal to, that is x plus 6 will become 7 plus 6, that is equal to 13 centimeter, and AB is equal to x plus 8, that is equal to x is here 7 plus 8, that is equal to 15 centimeter. So the required AC side is here 13 centimeter and AB is equal to 15 centimeter. Hope you understand the whole question. Question number 13 is the last question from the exercise. That is, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. एक सर्कल है हमारे पास अगेन विद सेंटर ओ, क्वाड्रिलेटरल सबटेंड कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है कि इस सर्कल को, मींस इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा. ये क्वाड्रिलेटरल है, हम क्वाड्रिलेटरल को ABCD मानते हैं और सर्कल सेंटर विद O, और इन्हें हम साइड्स मानते हैं. इफ दिस इज ABCD, से इट इज PQRS here, right? Touching the circle is touching the edges as at PQRS. Now हमसे कहा जा रहा है कि जो एंगल्स है वो the prove that the opposite sides of the quadrilateral जो है वो सबटेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. मींस ये अपोजिट साइड, दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. जो ये एंगल बनाएंगे कहां पे, सेंटर पे जो इनका एंगल बनेगा, इन दोनों का जो एंगल होगा सेंटर पे यही होगा. तो इसका एंगल ये होगा, इसका एंगल ये होगा, राइट? सो हमसे कहा जा रहा है कि जो अपोजिट साइड से जो भी एंगल सबटेंड हो रहे हैं एट द सेंटर उनका सम होना चाहिए 180. मींस हमें प्रूव करना है एंगल AOD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 एंड एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180. समझ आ रहा है?
इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 आना चाहिए। तो यहां से हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं विद द रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो इस तरह हमने इनको ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे। तो इससे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। तो फिगर को पूरा समझिए। यहाँ पे सर्कल है, सबटेंड कर रहा है, एक कोलेटरल सबटेंड कर रहा है सर्कल को, सब्सक्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। और वो जो हमें प्रूव करना है वो अपोजिट साइड्स ऑफ द कोलेटरल सबटेंड एंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मींस सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है उनका सम आना चाहिए, हमें वो आना चाहिए 180 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन ए कोलेटरल say ABCD circumscribing a circle with center O, right? to prove क्या है, to show angle AOD plus angle COB is equal to 180 डिग्री, ये दिखाना है। ये एंगल और ये एंगल का सम 180, और एंगल COD प्लस एंगल AOB वो भी 180 डिग्री आना चाहिए, ये सम इन दोनों का भी 180 आना चाहिए, राइट। सो कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या किया है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन OP, OQ, OR and OS and mark angles as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, proof. अगर आप प्रीवियस वीडियो पे ध्यान देते पूरा, तो उस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही समझाया था, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इनसे जो ये वाला जो तीसरा टेंजेंट था वो टच कर रहा था सर्कल को एट दिस पॉइंट आ, तो ऐसे में यहाँ पे जो एंगल था वो 90 डिग्री था ही, और ये एंगल भी 90 होगा, 90 प्लस 90 इज 180। तो हम अभी आपको पता ही है, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, बी इज द एक्सटर्नल, सी एंड डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, और ये जो है ये टेंजेंट्स होंगे, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वी नो दैट लेंथ of tangents from an external point are equal. Length of tangents from an external point to a circle are always equal. So it means हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AQ, लिखना जरूरी नहीं है, ये तो बार बार हमने किया ही है। AP AQ की बराबर BQ BR CR CS एंड DS DP के बराबर होगा। तो अब हमें जो दिखाना है वही हम यहाँ पे करेंगे। हम इन दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रेट करेंगे। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल, पूरा ध्यान दीजिए, AOQ, मैंने इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर किया है यहाँ पे। तो इन्हें कॉन्ग्रेट करने के लिए हमारे पास AP तो AQ के बराबर है। थ्योरम सेकंड, थ्योरम 10.2 से जो भी मैंने ऊपर रिजल्ट लिखा है, AO जो है both are common, right, and also what we are given, OP OQ के बराबर, radii of same circle, therefore triangles are congruent by side congruency. I think पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें हमने यही सेम प्रोसेस किया था। तो अगर ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट है तो इंप्लाइज एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 8 के बराबर होगा, CP। So we mark this as first, एंगल 1 is equal to एंगल 8। इसी तरह सिमिलरली हम दिखा सकते हैं एंगल 2, एंगल आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके 2 3 के बराबर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके 4 5 के बराबर। सिमिलरली एंगल 2 will be equal to एंगल 3, mark this second, एंगल
4 इज इक्वल टू एंगल 5 इन दो ट्रायंगल्स में, और इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास एंगल 6 is equal to angle 7. Mark this as 4. All the angles are given. Now, also angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 is equal to 360. Sum of the angles around the point is always equal to 360. या हम कहते हैं सर्कल, कंप्लीट सर्कल का जो मेजर ऑफ एंगल होता है वो 360 होता है, तो ये सारे मिला के ही तो पूरा 360 बन रहा है, तो एंगल ऑल एंगल्स का सम 360 होगा। तो अगर ऐसा है मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इंस्टेड ऑफ एंगल 3 वी कैन राइट एंगल 2 अगेन, हियर इट इज एंगल 2 अगेन, एंगल 4, एंगल 1 मैंने लिखा, ओके, एंगल 2 मैंने लिखा। इसी तरह हम लिख सकते हैं, हमें 5 और 6 चाहिए, 1 2 तो मिला, 5 और 6 में सारा कन्वर्ट करना है, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 4 हमारे पास आ जाएगा, एंगल 4 जो हमारे पास आ जाएगा ऑलरेडी एंगल 5 के बराबर है, एंगल 5 प्लस है एंगल 5, राइट। तो एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 6 एज इट इज एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 जो हमारे पास है दैट इज अगेन एंगल 6 प्लस एंगल 8 हमारे पास एंगल 1 के बराबर है। तो मैंने हर किसी को कन्वर्ट किया है, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2, एंगल 3 को भी एंगल 2 लिखा, एंगल 5 है तो एंगल 4 को भी एंगल 5 लिखा, इसी तरह एंगल 6 था ही तो एंगल 7 को भी एंगल 6 लिखा, एंगल 8 था ही तो एंगल 1 था तो एंगल 8 को रिप्लेस किया एंगल 1 से, तो इनका सम है 360। सारे जो है वो डबल में, तो ट्वाइस फॉर्म में आ जाएंगे, ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360, और वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 180 होगा, 2 यहां से डिवाइड होगा 360 में। तो अगर ये सम 180 का है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एक्चुअली व्हाट, एंगल AOB प्लस एंगल 5 प्लस 6 इज एंगल COD इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों का हमें सम, अपोजिट साइड्स के जो सबटेन एंगल है वो उनका सम हमें सप्लीमेंट्री आ रहा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह हम दिखा सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल COB is equal to 180, hence proof. Hope you understand the whole topic.